Good morning, students. How are you? I wish you happy. Okay. So this is the second lecture video of basic science, in which in the first video we will study about seed, seedling, germination, cotyledon, that is a structure of seed, and dispersal of seed, and why it is need, what is the need of dispersal of seed. Okay, in this video we will study about agriculture, crops, steps of agriculture and types of crops, and manures and fertilizer which is used to grow crops. Okay, including pesticide and insecticide. So let's study one by one. So first of all, what is agriculture? Okay, so before going to explain agriculture, we will study about crops. Okay, what is crops? That is the planting of same types of plant on a large area for food is called crops. सीजनली है ना, डेट मीन्स अगर हम लोग वैसे प्लांट को जो एक ही सीजन में बहुत लार्ज एरिया में अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। जैसे व्हीट, गेहूं, पैडी, धान, मैज, all these are crops because all these are grown seasonally on a large scale. Okay, next, crops are two types. Crops are two types. One, rabi crops, and second, kharif crops. Rabi crops, all those crops that are sown in October to November and harvested in March to April is called rabi crops. यानी वो सभी फसल जो अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हों और मार्च से अप्रैल में उसे काट लिए जाते हों, हार्वेस्टेड किए जाते हों। जैसे ग्राम, चना, गेहूं, मस्टर्ड, सरसों, etc, मसूर, ये सभी ऐसे क्रॉप्स हैं जो हम लोग अक्टूबर नवंबर में इसे लगाते हैं, यानी विंटर सीजन में लगाते हैं, और जैसे ही जब गर्मी सीजन, समर सीजन आने वाली होती है तो क्या होता है, ये इसकी कटाई हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आ गए? नेक्स्ट हम लोग को है खरीफ क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप्स को जनरली जून या जुलाई महीने में सोन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जबकि उसकी कटाई अक्टूबर टू नवंबर में की जाती है, हार्वेस्टेड की जाती है। जनरली पैडी, मैज, धान, मक्का, ओके, ये सभी ऐसे हैं जो रेनी सीजन यानी जून जुलाई जनरली वर्षा का मौसम होता है, उस समय से लगाए जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर जब ये ठंड पड़ने लगती है तो इससे क्या हो जाता है, इसकी मैच्योर हो जाती है और ये कट जाते हैं। ओके, so what we see here, crops growing of a same types of plants on a large scale is called crops. There are two types of crops, rabi crops and kharif crops. Rabi crops grown on October to November and sown on March to and harvested in March to April. Gram, wheat, etc are the example of rabi crops. Similarly, kharif crops are sown in June to July and harvested in October to November. Okay, paddy, maize, etc are the example of kharif crops. Now we will study about agriculture. Okay, agriculture, growing of a plants, growing of a crops. Okay, growing of the crops on a large scale. Growing of crops on a large scale at the same time is called agriculture.
ओके, हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल पे अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओके, एग्रीकल्चर, growing of crops on a large scale is called agriculture. ओके, यदि हम लोग क्रॉप्स को बहुत बड़ा स्केल पे, बहुत बड़े एरिया पे हम लोग ग्रो करते हैं एट ए सेम टाइम, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड इकोनॉमिक पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. Okay, now steps of agriculture. There are following steps of agriculture. First, plowing. Second, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, using pesticide and insecticide, and next, breeding. Now we will discussing one by one. Let's suppose that दिस इज आवर फील्ड, ये हमारे खेत हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें प्लॉइंग करेंगे. हाँ, प्लॉइंग करेंगे. प्लॉइंग हम लोग किस चीज से कर सकते हैं, हल से, बैल से, एंड और हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग मशीन से, जैसे ट्रैक्टर. ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या किए, अगर हम लोग प्लॉ कर दिए ना, दैट मींस हम लोग प्लॉइंग कर दिए. What is the purpose of plowing? हम लोग प्लॉइंग क्यों किए, we plow the field to loosen the soil. हम लोग इसको मिट्टी को लूज करने के लिए क्या किए, प्लॉइंग किए. जब मिट्टी लूज हो गए, नेक्स्ट क्या इससे हम लोग को बेनिफिट है, मिट्टी लूज होंगे, ढीले हो गए तो क्या, वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाती है. ओके, इसका फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाती है. ओके, सेम दैट इज फर्स्ट स्टेप, वी प्लॉ बाय यूजिंग ट्रैक्टर या हल बैल. ओके, नेक्स्ट वी सॉइल. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बीज, जो भी हमारा क्रॉप्स का सीड है उसे हम लोग सो करेंगे. हाँ, जब हम लोग सो करेंगे तो हम लोग सोचेंगे, उस समय हम लोग को एक और बात जो है हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर. एट ए टाइम ऑफ सोइंग सीड वी आल्सो ऐड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर to increase the fertility of soil. ये मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, हमारे सॉइल को, फर्टिलिटी पावर को और भी इंक्रीज कर देते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स क्या होते हैं. फर्टिलाइजर एंड ओके, तो फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आर्टिफिशियली फैक्ट्री में बनाए जाते हैं. इसका फंक्शन है कि हमारे सॉइल का फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करे, और जिससे क्या होता है कि हम अगर कोई भी प्लांट्स में ग्रो करते हैं तो अच्छी तरह से ग्रो होता है. दैट मींस इट्स फंक्शन टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. इसका फर्टिलाइजर का फंक्शन क्या है कि प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें. नेक्स्ट, मैन्यूर. Manure is also a substance that provide essential nutrients to plant, but it is not a chemical substance. It is formed by dead and decaying animal. that means decomposition of dead and decaying animals. यदि सड़ा गला जानवर या प्लांट्स जब वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो जो होता है क्या कहलाता है, मैन्यूर्स कहलाते हैं. ओके, जैसे ये बनाए जाते हैं,
इसे हम लोग मैन्यूल्स को कैसे बनाते हैं वो एक स्टेप हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक गड्ढा डेट मीन्स डीप कर देते हैं। धरती में हम लोग क्या किए, एक गड्ढा बना दिए। इसका फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या रखें, प्लांट डेड पार्ट्स, प्लांट डेड एंड एनिमल्स वेस्ट है ना, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट को क्या किया हम लोग रखे। ओके, उसके ऊपर हम लोग क्या दिए, सॉइल का लेयर, सॉइल का लेयर हम लोग चढ़ा दिए। फिर से क्या किया हम लोग, प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट हम लोग रखे, फिर से सॉइल लेयर, नेक्स्ट प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, नेक्स्ट सॉइल लेयर, सबसे ऊपर में लेयर ऑफ सॉइल। ओके, एंड आफ्टर लिविंग 1 month approx 2 month this is converted into manures। हम लोग क्या किए, एक गड्ढा खोदे, उसमें पहले डेड प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट हम लोग रख दिए, उसके बाद ऊपर से सॉइल रखे, फिर से प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, फिर से सॉइल रखे, फिर से प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉइल रखे। तो इस तरह से 1-2 महीने के बाद ये सभी प्लांट वेस्ट क्या मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो मिट्टी जो हो जाता है डिकम्पोज होने के बाद बनते हैं सॉइल प्लांट से एंड एनिमल वेस्ट को, जो हम लोग मैन्यूर के फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर्स इज अ made by biotic components while fertilizer is made by artificially in factory। Okay, fertilizer is harmful for us because it is chemicals है ना। fertilizer also pollute the soil, fertilizer soil को क्या करता है, pollution कर देता है, ये वाटर को pollute कर देगा। वाटर जैसे अगर तालाब है, नदी है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इस फर्टिलाइजर की यूज अगर हम लोग खेतों में करते हैं तो इसका यूज अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, और कुछ जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फ्लो करके वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जैसे या तो तालाब में या तो रिवर में चले जाते हैं, और वहां जाकर के ये वाटर को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, जिससे क्या होती है कि उस जगह पे जो भी जीव जंतु यानी प्लांट्स या तो एनिमल होते हैं वो सफोकेटिंग करते हैं और उनका डेड हो जाता है। ओके, दैट मींस वी कैन से दैट फर्टिलाइजर इज beneficial but it is also harmful to our environment। okay, but in a comparison to manure, manure is very useful to us because it not harms our soil, it not pollutes our environment। okay, ये हमारे सॉइल और हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन फ्री है, ये इकोनॉमिक। ओके, ये दैट मींस हमारे इकोलॉजिकली इको फ्रेंडली है। ओके, दैट मींस हम लोग क्या वही हम बोलने जा रहे थे, इको फ्रेंडली है। ओके, ये जो मैन्यूर से वो क्या है, इको फ्रेंडली है, जबकि फर्टिलाइजर इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर इकोसिस्टम को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। ओके, जबकि हमारा ये मैन्यूर उसको बर्बाद नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे का स्टेप देखें। हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या देखें चिल्ड्रन, फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखें प्लॉविंग किए, या तो ट्रैक्टर से या तो हल से। नेक्स्ट हम लोग सोइंग, सीड को सोइंग किए, उसके साथ साथ हम लोग फर्टिलाइजर या तो मैन्यूर्स को ऐड किए ताकि अच्छी तरह से ग्रो कर सके। अब हमारा प्लांट्स क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। अब हमारा प्लांट्स क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो लेट्स अगर हमारे प्लांट्स ग्रो कर गए, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या स्टूडेंट्स, इसे पानी चाहिए, व्हाट इज नीड, वाटर। ओके, सो वी गिव इट वाटर, हम लोग इसे क्या करेंगे, वाटर देंगे। कैसे, भाई मोटर से, बाल्टी से नहीं, मोटर से, है ना, डिफरेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी है ना।
So we use irrigation system to irrigate it. So what is irrigation? That means watering of plant is called irrigation. पौधों को पानी देने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या किए? एरिगेशन किए। नेक्स्ट अब हमारा प्लांट क्या होगा? पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, पहले से ज्यादा हमारा क्या हो जा रहा है? ग्रो कर गए, बड़ा हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, हमें लग रहा है कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं, जो कीड़े हैं, जर्म हैं, कुछ इंसेक्ट है जो क्या कर रहे हैं? हमारे फसल को नष्ट करने वाले हैं। तो हमारा फसल नष्ट ना हो इन कीड़ों को द्वारा, उस जर्म को द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, तो हम लोग क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ओके, इंसेक्टिसाइड क्या करता है? इंसेक्ट जितने भी जर्म्स या कीड़े होते हैं उसे मारने का काम करते हैं। अब हमारा क्रॉप सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है वीडिंग। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोगों को क्रॉप्स में अनवांटेड प्लांट्स, जैसे फसल में घास उगाना, अगर घास अधिक मात्रा में हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं? वीडिंग करते हैं। या तो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, नहीं तो हाथ से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो वही हाथ से निकालने का, हाथ से अलग करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। यानी वीडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अनवांटेड प्लांट्स को यानी ग्रास को क्रॉप से हम लोग हाथ के द्वारा उसे अलग करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। ओके, सो अब जब वीडिंग हो गई तो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट में हमारा फसल मैच्योर करेगा। क्रॉप हमारा जब मैच्योर करेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे, और हार्वेस्टिंग करने के बाद हम लोग उसे ओके, सो ऑल दीज आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रबी क्रॉप्स एंड स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स। ओके, I hope you understood better. Okay, so for understanding better, you watch this video 1 to 2 times. Okay, and after it you are notice that you are not able to understood, then you also send me message or talk to me. Okay, thanks.